دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی پہلی 8 آیتیں دیکھیں گے. خدا کے کلام میں شاہ بابل بیلشچر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی. اس نے ان خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجموعہ بیان کیا. دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہواؤں میں سمندر پر زور سے چلی اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف نکلے. پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا اور میں نے دیکھتا رہا جب تک کہ اس کے پر اکھاڑے نہ گئے اور وہ زمین سے اکھاڑا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا. اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند تھا اور وہ اس طرح سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے منہ میں اس کی دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں اور انہوں نے اسے کہا اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا. پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تندوے کی مانند تھا اٹھا جس کے پیٹھ پر پرندوں کے سے پر بازو تھے اور حیوان کی 4 سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی. پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ 4تھا حیوان ہولناک اور ہیبتناک اور نہایت زبردست ہے اور اس کی دہشت لوہے کے بڑے اور اس کے دانت لوہے کے بڑے بڑے تھے. وہ نکل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے اتارتا تھا اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا. اس کے 10 سینگ تھے. میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلو میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے. اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کسی آنکھ ہے اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں. خدا کا پاک نام پڑھا سنا جانا سب کو باعث خدا کا شکر ہو. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج کے کلام سے ان کے بند دروازے کھل جائیں اور آسمان کی کھڑکیوں کے دروازے ان کے کھل جائیں اور وہ برکت جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے اور جو فتح اس سے اپنی قوم اپنی اس سے رکھی آپ کو مل جائے اور اپنے خدا کی تعظیم کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اس کی عبادت کے لیے آپ کے اندر زور آ جائے اور اس کے کلام کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں اور اس کا حکم بجا لائیں تاکہ زندگی کے تمام معاملات میں فتح پائیں. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسا ہو جائے. خدا کے کلام کی تعظیم کریں گے یسوع کے خون میں یسوع نام میں تعظیم آپ کے بیٹھنے میں ایک نہایت تعظیم خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز کے شنوا ہوں. کیونکہ خدا کا کلام جب اترتا ہے وہ دیداروں کو کیا کرتا ہے بنا دیتا ہے. وہ ہرنیوں کے بنا دیتا ہے اور وہ عجب کام کرتا ہے. وہ اپنی قدرت سے ہر چیز کو سینچ دیتا ہے. خدا کے کلام نے کہا جب تک تو آسمان سے کلام کو نازل نہ فرمائے گا ہم میں سے کوئی بھی شفا نہیں پائے گا. یاد رکھیے آپ کا شفا کا تعلق آپ خدا کے کلام سے ہے. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو یہ کلام آپ کو شفا دے گا اور اگر آپ غور کریں گے تو یہ بندھن توڑ دے گا. اگر اسے ساتھ لے جائیں گے تو آپ پہاڑوں چٹانوں پہ چگنا شروع کر ڈالیں گے. دشمن کی ساری قوت پر کیا پائیں گے فتح پائیں گے. اگر کلام آپ کی زندگی میں ہے تو پھر کون آپ کی زندگی میں ہے یسوع میرے خدا یسوع جو کلام حق اور کلام خدا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. آئیے ہاتھ اٹھا کے بولے کہ تعظیم خود کلام ہی خدا تھا. کلام ہی خدا تھا. کلام ہی اور کلام کیا ہوا مجسم ہوا اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس کو نے خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا حق بخشا. اب اس 2 چیزیں یہ چاہتا آپ کی زندگی میں ہوں. ایک کلام ایک پرستش. ہماری
आपसी लड़ाइयों में प्रस्तुत का हिस्सा छीन लिया है। अगर हम वक्त पर जमा हो तो हम 1-1.5 घंटा बहुत ज्यादा खुदा की प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी दौर है। मैंने देखा कि मैंने हर बार कहा कि हम में से कितने दाऊद होंगे। हर जुमे हम खुदा का अच्छा गाया जाता है, पर आपका वही रवैया होता है जो पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम इतने बड़े खुदा की सताइश कर रहे हैं। सो आज इस दानियल के गहरे रोगाश्वा से जो कलाम आप सुनेंगे, उसमें आपकी आंखें रोशन क्या आंखें फट जाएंगी कि आपका खुदा कैसा बड़ा खुदा है और आपके खुदा के सिवा कोई दुनिया में खुदा नहीं है। क्योंकि ऐसा मामूद नहीं है जो इस तरह की कुदरत और जमात को जलाल रखता। काश मैं कोशिश करता हूं कि हर बात में हम खुदा की ताज़ीम करें, हर बात में हमारी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ हो, खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, ताकि हम खुदा की आवाज के क्या हो। सो दानियल पहले बादशाह के ख्वाब को तबीर देता था, अब दानियल को ख्वाब आता है और दानियल अपने इस ख्वाब को देखकर हड़बड़ा जाता है और परेशान होकर और खुदा का रूह से कहता है लिख, क्योंकि ये कलाम लिखना बहुत जरूरी है। सो खुदा उन बातों को दानियल पर आज से 2000 साल पहले यीशु आए और यीशु से पहले 4000 साल पहले दानियल पर खुदा ने इन बातों को क्या कर दिया, रोशन कर दिया। आप ये देखिए कितना पुराना कलाम है जो दानियल के सुपुर्द है। जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने इस्राएल को तबाह कर दिया, हैकल को बर्बाद कर दिया, उसके सारे ज़रूफ ले आया और 70 की सेरी में बहुत से नबियों को कैद करके ले आया, तब ये रोया। दानियल ने तकरीबन 20 साल के बाद उसने ये रोया देखी, बल्कि 48 साल के बाद नबूकदनेस्सर की बादशाह खत्म होने के बाद, शाह बाबर की हुकूमत खत्म होने के बाद, उसने बेलशस्सर की हुकूमत के अंदर इस ख्वाब को देखा। ये ख्वाब जो उसने देखा, उसने खुद देखा और खुद ही खुदा ने उसे ताबीर बताई और खुद ही उसे क्या किया, लिखा। किसके लिए लिखा? हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। डरते क्यों हैं? कहे हमारे लिए लिखा। हमारे लिए। कहे मेरे लिए लिखा। मेरे लिए लिखा है। आज आप दानियल से कितनी सदियां आगे हैं। दानियल इस दौर के बारे में लिखता है, दानियल उन हुकूमतों के बारे में लिखता है जो अभी वजूद में नहीं आई है। खुदा दानियल पर उन बातों को इशारा करता है जो कौमें, हुकूमतें अभी वजूद में नहीं आई है। खुदा उनके बारे में वो पैदा नहीं हुए, न बादशाह पैदा हुए, न फौजी पैदा हुए, न हुकूमतें, न रियासतें, कुछ भी पैदा न हुआ, कोई चीज न बनी, पर दानियल को खुदा बताता है ये सब चीजें पैदा होंगी और यूं हुकूमतें, बादशाह बर्पा होंगे। पर तुझ सब बातों को लिख, क्योंकि मैं बादशाह का बादशाह और खुदा का खुदा है। हालेलुया। मैं इस किताब को जब पढ़ रहा था तो खुदावंद ने, मैं हिल के रह गया और मैं पूरा हफ्ता इस बात को सोचता रहा, ये तो हैरतअंगेज कलाम है। ये कैसा कलाम है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। इस कलाम के मुताबिक कोई चीज पैदा नहीं हुई, पर खुदा उन कौमों और जत्थों और बादशाहों, बुतप्रस्त बादशाहों के बारे में, उनकी तरक्की, उनकी फतूहात के बारे में दानियल को बता रहा है। हालेलुया। दानियल का खुदा सबसे बड़ा खुदा है जो दिलों गुर्दों को जानता है, जो हालात की तैयारियों को जानता है, जो फ्यूचर की प्लानिंग को जानता है, जो माजी हाल मुस्तकबिल का खुदा है, जो माजी हाल मुस्तकबिल का खुदा है। सही तरह बोलने की तासीर, जो माजी हाल मुस्तकबिल का क्या है? खुदा है। जो माजी हाल मुस्तकबिल का क्या है? खुदा है। जो माजी हाल मुस्तकबिल का क्या है? खुदा है। सो जब ये बात मैं सोच रहा था कि कैसा, यहां तक कि बादशाह वजूद में नहीं आए, हुकूमतें, उनकी शक्लें नहीं
बनी, पर खुदा सब कुछ जानता है। तो खुदा के कलाम ने मुझे गहरे में ले गया। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबोगरीब तौर पर क्या बना हूं। तेरा कलाम हैरत अंगेज है, तेरे काम हैरत अंगेज है। मेरा दिल उसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन की असफल में अजब दौर से मरकब हो रहा था, तो तेरा ताल्लुक मुझसे छुपा न था। तेरी आंखों ने मेरे बेदर्दी मादे को देखा। वो अय्याम मेरे लिए जो मुकर्रर थे, वो सब तेरी किताब में पहले से लिखे हुए थे, जबकि एक भी वजूद में न आया। आपका नाम क्या होगा, आपकी शक्ल कैसी होगी, आपके बच्चे कितने होंगे, आप कितने वर्ष जिएंगे, आप अपने उस वर्षों में क्या कुछ करेंगे, आप खुदा के लोग होंगे, आप बुतप्रस्त होंगे, आप खुदा में मरेंगे, आप गुनाह की मौत मरेंगे। ये सब चीजें खुदा की किताब हयात में पहले से लिखा है, पहले से लिखा है, पहले से लिखा है, पहले से लिखा है। आई समझ के कहेंगे पहले से लिखा है। आपके बारे में एक शख्स जो यहाँ बैठा है, एक शख्स जो दुनिया में चल फिर रहा है, उसके बारे में किताब हयात में खुदा सब के बारे में सब कुछ जानता है। खुदा सब बातों को जो आप गुजारेंगे, वो वक्त घड़ी जो आप गुजारेंगे, वो चीजें जो आप हासिल करेंगे, खुदा उनको पहले से जानता है, पहले से जानता है, पहले से जानता है। तो मैं आपकी जगह होता ना, तो जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, मेरे पाँव जमीन पे न टिकते और मैं अपने खुदा के ललकार की तस्लीम करता, क्योंकि मेरा खुदा इतना बड़ा खुदा है। हालेलुया, 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 कहना पड़ गया ठंडे लोगों, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा सब बातों को जानता है जो इंसान की जिंदगी को होगा, हाँ वो खुदा को जानता हो या ना जानता हो। कोई ऐसा खुदा है नहीं, कोई ऐसा महमूद है नहीं, कोई ऐसी हस्ती है दुनिया में, नहीं, कोई ऐसा जलाल का बादशाह है, नहीं। इसलिए वो कहता है वो बादशाह का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। कोई ऐसा बड़ा महमूद नहीं। इन सब बुतप्रस्त हुकूमतों ने खुदा की तासीम की, क्योंकि वो जान गए कि इससे बड़ा कोई खुदा दुनिया में नहीं है। जब उन्होंने अपनी प्रस्तुत करवाने चाहे, तब भी वो जान गए कि ऐसा बड़ा खुदा दुनिया में कहीं नहीं देखा है। और उन्होंने दानियल के खुदा की क्या की, आप ना करना। दानियल के खुदा की बुत प्रस्तुत तस्वीर की आप ना करना। उन्होंने दानियल के खुदा की क्या की, ताजीम की, क्या की, ताजीम की। खुदा जानता था कि आप हाथ खड़ा नहीं करेंगे, ये भी लम्हा वो जानता है आपका, आप क्या है, क्या चीज है, खुदा जानता है, पर आप खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यही अफसोसनाक बात है, यही बात आपके लिए मुसीबत और दुख का बायस है। यही चीज खालिद आपको सुझाते हैं कि अपने आसमानी बाप को पहचानो। कितनी ऊंट है, कितनी कौम है, कितने जन है, कितने बादशाह गुजरे हैं, पर रब्बुल फाज को किसी ने बाप कह के नहीं पुकारा। ये फजल खुदा ने आप पर दिया है कि आप उसे बाप कह के पुकारें। हालेलुया, वो भी आपकी अकल ठिकाने पर नहीं है। आप उस खुदा की जो आपका खुदा है और जो हस्ती और जलाल का खुदा है, जो बादशाहों की पुश्तों को और हुकूमतों और हर चीज को बनाने वाला है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है और उससे सारी तख्लीक को बनाया है, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। आसमान उसका तख्त है और जमीन जिसके पांव की क्या है, चाबी है। वो तेरा खुदा है, वो तेरा रब्बुल फाज है। वो औरतों और कौमों पर अपना तमाम वो करता आवाज रखता, वो उसको कभी जुम्मश न होगी और उसके नाम को वो कभी सवाल नहीं होगा। वो बादशाह का बादशाह और खुदावंदों का खुदा